Welcome students to Vipin Sharma Physics channel, and we are doing the topic properties of bulk matter. Under that properties of bulk matter, we are learning the liquids at rest, and we have done forces of cohesion, that is the force of interactions between the similar molecules. Forces of adhesion, that is the force of attraction between two dissimilar molecules. Then students, we have done the concept of thrust. Liquid exerts pressure, and students, after that we have done the concept of thrust exerts thrust upon area is pressure. Then after that we have done the work done in displacing the liquid, that is delta W is equal to P delta V. Now students, I'm going to teach you something very, very interesting, an application of Pascal law. Pascal law states that in the absence of gravity, pressure is transmitted equally in all directions. That is one of the logic that makes the pressure to be a scalar quantity. Sometimes we teachers ask students, is pressure vector or scalar? तो बच्चा पता क्या बोलता है? वो बोलता है सर pressure is force upon area. तो force is vector, so pressure is vector. Teacher says no, pressure is not vector, pressure is scalar. Sir, how it is possible? Pressure is force upon area, force is a vector, then pressure should be a vector. No, teacher says pressure is scalar. Sir, how pressure is scalar? Beta, it has only magnitude. Sir, then can you tell me, if it has only magnitude, then where is its direction? You know what is the right answer? इसका सही आंसर क्या है? Pascal law. Which law? Pascal's law. Pascal's law states that in the absence of the gravity, the pressure is transmitted equally in all directions. आप मुंह फुलाते हो ना, तो आप मुंह के अंदर एयर ले लेते हो. That is what pressure is. Inside the mouth is transmitted in equally in all directions. When you have number of directions, then you have no particular direction. You have no specified direction. Hence, you have no direction. It means you are a directionless. Because you have multiple directions, it means you have no directions. Direction is always tangent. It's one direction. So pressure is not having one direction. So it's a scalar. Despite force is a vector. Interesting. Now students, मैं एक बार एक जगह गया कार वॉश करवाने. तो उससे पहले एक बहुत बड़ी एसयूवी गाड़ी थी, बड़ी हैवी. तो वो पूछता है कि जी फुल वॉश हाफ वॉश. तो बंदा बोलता भाई एसयूवी वाला बड़ा आदमी वाला फुल वॉश. तो वो गाड़ी को ले जाते हैं और गाड़ी को ले जाके वो प्रेस करता है एक बटन, तो वो गाड़ी ऊपर उठना शुरू हो जाती है. वो मतलब देखा होगा आपने, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो
छोटे होते बचपन में, तो वो गाड़ी वॉश करवाते हैं, तो कई बच्चे तो कहते हैं कि मुझे गाड़ी में बैठे रहना है, और वो आपको गाड़ी के बीच में या बैठे और गाड़ी ऊपर उठ जाती है और फिर नीचे से वॉशिंग करते हैं। कभी नोट किया है वो कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट है? दोस्तों मैं क्या बोला करता हूं, ऑल नेचर इज फिजिक्स। तो ऑल नेचर इज फिजिक्स एंड रेस्ट इज, अब मैं क्या बोलूं, मैं बोला करता हूं स्टैम्प कलेक्शन। खैर एनीवे, सभी को अपना अपना सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मेरे को अपना सब्जेक्ट अच्छा लगता है, फिजिक्स मैथ्स जाना है हमारी, राइट। अब आपको वो एक्सप्लेन करता हूं मैं पहले, फिर बाद में हेडलाइन बनाएंगे क्या है। आप इमेजिन करो ये एक इस तरह का, अरे यार ये ना एक्चुअली कैमरा थोड़ा टिल्टेड है, तो फिगर में ऐसे लगता है जैसे मैंने थोड़ा टिल्टेड बनाया। मैं दोबारा बनाता हूँ, स्केच करता हूँ। ये तो सीधे आ गया, ठीक है। अब एक ना कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, अगर आप मिरर को 1 डिग्री रोटेट करते हो तो रिफ्लेक्टेड रे 2 डिग्री रोटेट हो जाती है ना। तो इसमें हल्का सा एक एंगल आ जाए तो, अब मैं इसको ऐसे करता हूं, देखो सीधा आ रहा है ना। काइंडली बेयर यार, हैं जी, अब इस पे ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हम लोग, है ना जी। ये यहां पर पिस्टन लगा हुआ है, ऐसे ना। देखो मैंने हेडलाइन नहीं बनाया अभी, ठीक है। अब क्या है यार, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। ये पिस्टन है, पिस्टन, और इसके ऊपर भी, यहां भी एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर दरादर एक टेबल सा है, तो ऐसे। अब यहां पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A2 है, और यहां पर प्रेशर है P1 और यहां पर प्रेशर है P2, करेक्ट, ओके। तो इस पे हम फोर्स लगाते हैं F1, और यहां पर जो फोर्स ट्रांसमिट होगी वो F2। अब बहुत ध्यान से लॉजिक देखो, P1 इज इक्वल टू व्हाट, F1 अपॉन A1। मैं ज्यादा ना मतलब वो लंबा लंबा करके नहीं बताऊंगा, बड़ा एकदम 30 सेकंड जनरेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जैसे आप बस 30 सेकंड्स में एकदम से वैसे। सो P1 इज F1 अपॉन A1, डन। और P2 क्या बोलता है स्टूडेंट्स, F2 अपॉन A2, ठीक है। बस एकदम 22nd सेंचुरी टीचिंग है ये, सीधी बात, SBNV, सीधी बात, नो बक, पता ना, बस ठीक। अब यहां पास्कल साहब आए, मेरे को बोलते विपिन सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो? मैंने कहा यस सर। क्या पढ़ा रहे हो यार? मैं क्या? मैंने कहा सर यहाँ P1 F1 अपॉन A1, यहाँ P2 F2 अपॉन A2। कहता बॉस ग्रेविटी है। मैं कहा सर इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। कहता इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी
pressure is transmitted equally in all direction. अब मैं यहां लिखता हूं, है ना, in the absence of gravity P1 is equal to P2. In the absence of gravity P1 is equal to P2. भैया मैंने कहा सर अब क्या करूं? कहता यार इसको इक्वेट कर तू। मैंने कहा ठीक है जी। इसका मतलब है F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। मैंने कहा यस सर। कहते दिस इंप्लाइज F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2। मैंने कहा सर मतलब? कहता अगर तू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा लेता है, तेरी यही जो फोर्स है ना वो कितनी बढ़ गई। मैंने कहा सर समझा नहीं। कहता यार तुम एक काम करो, तुम यहां पर लगा रहे हो 5 न्यूटन फोर्स। मैंने कहा यस सर। कहता यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सपोज करो 10 यूनिट। मैंने कहा यस सर। फोर्स कितनी है? कहता 5 न्यूटन। मैंने कहा यस सर। यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 10 न्यूटन। ठीक है। और F2 तूने निकालना है और यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है से 1000 यूनिट। मैंने कहा यस सर। कहता तेरा फोर्स कितना बना? मैंने कहा आप बताओ सर। कहता तू बता। मैंने कहा सर देखो F1 कितना है सर? कितने न्यूटन लिया मैंने? 5 न्यूटन। एरिया कितना लिया सर? 10 यूनिट। यहां कितना एरिया ले लिया? 1000 यूनिट। ये कट गया तो मेरे पास जो F2 निकला वो 500 न्यूटन निकला भैया। मिश्रा जी 500 यूनिट फोर्स आ गया है। कितना फोर्स लगाया है? 5 न्यूटन। कितना फोर्स आ गया है? 500 न्यूटन। है ना कृष्णा? अच्छा अब समझ आया मेरे को। वो जो थोड़ी सी फोर्स हम लगाते हैं ऐसे करके लीवर को नीचे करते हैं और वो ऊपर का ऊपर सारे का सारा गाड़ी उठा देता है। वो छोटा सा एफर्ट इतना बड़ा एफर्ट में कन्वर्ट हो गया। सर ये क्या है? दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। अच्छा ये और क्या? दिस इज व्हाट? दिस इज, अरे भैया एक मिनट मेरे पैर में तार फंस गई। हाइड्रोलिक लिफ्ट। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? सिर्फ पास्कल लॉ। अब मेरे अंदर का जो स्टूडेंट है वो चुप नहीं बैठने वाला। वो बोलता है विपिन सर। अब जैसे पता क्या है, जब जितना पोक करोगे ना उतना बंदा चिढ़ता है। अब टीचर बोला क्या है? यस सर आपने बोला इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मैंने कहा यस सर यहां ग्रेविटी तो है। मैंने कहा मतलब? सर कार आपने यहां पर खड़ी की है, इसके ऊपर एसयूवी गाड़ी खड़ी की है, ठीक है, और जैसे आपने इनोवा क्रिस्टा या थार या फॉर्च्यूनर या एंडेवर खड़ी की, वो ऊपर उठी, सर उसका वेट हाई कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल हाई। तो सर फिर ग्रेविटी तो है ही ना। मैं कहा हाई। तो फिर एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी कैसे हो गया? गुड क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। मेरे फिजिक्स में मैंने को टीवी शोज किए थे 2009 में फास्ट वे के ऊपर, और उसमें मैंने प्रूव किया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। रेन बेकर प्रॉब्लम लेके, जो कि प्रोजेक्टाइल चैप्टर का बेस है। स्टूडेंट को
बेस पसंद है ना? तो उसमें ग्रेविटी, सॉरी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट। तो ये जो है ना, ये वाला, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें लो मैंने भरा नहीं, अब भर दिया। इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो लेंथ है ना, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये F2 कौन है? जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जो कन्वर्ट हो रही है 500 न्यूटन, इसको हमने प्रेस किया 5 न्यूटन। ग्रेविटी हैज नो रोल। ऑफ कोर्स ग्रेविटी हैज ए रोल टू प्ले इन टर्म्स ऑफ द वेट। होप इट इज क्लियर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाइड्रोलिक प्रेस। हेडलाइन इज देयर। होप इट इज क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा इंटेलिजेंटली एक चीज और सिखाता हूं। ब्रह्मा प्रेस। कौन सी प्रेस? ब्रह्मा प्रेस। ये वो प्रेस है जिसमें हम बड़े बड़े मेटल के लोब्स को प्लेन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं ना, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो वो कैसे? ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हमने एक लोहे का टुकड़ा रख दिया और इसके ऊपर बड़ी हार्ड रूफ बना दी। हार्ड रूफ, वेरी हार्ड रूफ। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे ना, है भैया, ये ऊपर को जाएगा और ये ऊपर को जाएगा, ये प्रेस हो जाएगा और प्रेस होके ये प्लेन शीट बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड ब्रह्मा प्रेस, जिसमें हम लोग मेटालिक लोब्स को शीट में मैलिएबल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट यू हाइड्रोलिक प्रेस, lift, sorry, and I have taught you Brahma press. So simple. So this is what a teaching for CBSE NCERT level. Kindly scientists excuse me, I am teaching you the syllabus, I am maintaining the curriculum. That's it. बस करें। फास्ट फॉरवर्ड मत करके पढ़ना यार, पेशेंस से पढ़ना सीखो। एक चीज सुनो, किसी को मैंने एक चीज बात नोट की, आप सुनते ही नहीं किसी को। मतलब पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा था, आप एकदम से ना, मतलब जैसे चिल्ली मशरूम खाते हैं ना, बस उसमें आपको मशरूम ही मशरूम मिले और वो जो साथ में कैप्सिकम होता है या अनियन होता है वो ग्रेवी ना मिले। लेकिन आपको पता है चिल्ली चीज़ का टेस्ट तभी बनता है जब उसमें कैप्सिकम हो, अनियन हो। आई एम नॉट ए कुक बट खाता रहता हूँ बाहर तो पता लगता रहता है, साथ में अजीनोमोटो हो जिसके कारण आप एडिक्ट हो जाते हो। इसी तरह से स्टूडेंट, जब आप फिजिक्स में किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो उसमें यार कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अप्लाइड जरूर सोचा करो। अगर आप अप्लाइड नहीं सोचोगे तो फिजिक्स समझ नहीं आएगी बाबू मशाई। थैंक यू। सो रिवाइज, मेक नोट्स, दैट्स इट। खुद से नोट्स बनाओ, ओके। लेट P1 be F1 be the pressure here, F1 is the force here, sorry, F1 is the force here, P1 is the pressure, A1 is the area of cross section। यहां पर क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, फोर्स क्या है? F2। तो प्रेशर क्या हुआ? P2, F2 अपॉन A2। यहां प्रेशर क्या हुआ? P1 अपॉन A1। तो प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, पास्कल लॉ, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। ये देखिए ये कैसे है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे अगर जिंदा रहे। बाय बाय।